Now in the last class, we talked about the trachea and the bronchi. Now, what we're going to do is we're going to talk about cigarette smoke. We're going to talk about the diseases caused by smoking on the gaseous exchange pathway. ठीक है? लेकिन उससे पहले, the first thing that we're going to talk about is the cigarette smoke, right? Now, now, if I were to draw a cigarette for you guys, तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास a cigarette is basically a small paper filled with tobacco, right? अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है? And the very first part is the one where the person basically puts their mouth and tries to ingest or inhale the smoke, and it has a what present? It has a filter present, right? It has a what present? It has a filter present. Now this particular part is what we call as the active end, where the person inhales the smoke from. So let's suppose this is someone trying to inhale the smoke, right? जो दूसरा वाला पार्ट होता है that's basically burning. जो दूसरा वाला हमारे पास पार्ट होता है that's basically the one that's burning, right? The part that burns is what we call as the passive end. ठीक है जी? अच्छा, now अब इसको देखो इसके बीच के अंदर what is rolled around or what is the paper rolled around, that's the tobacco. ठीक है? अब एक चीज देखो, अब before we talk about the cigarette smoke and the tobacco or anything, सबसे पहले let's talk about the passive end. पैसिव एंड इट बर्न्स, लेकिन किस तरह ये कंबस्ट हो रहा होता है, हम लोग कहते हैं भाई इट कंबस्ट, लेकिन पैसिव एंड के ऊपर जो पेपर होता है it combusts or it burns through what? Incomplete combustion. Incomplete what? Combustion. ठीक है? अच्छा, अब combustion क्या होती है? Let's talk about that. I'm pretty sure that you guys have talked about combustion in chemistry. Combustion is the burning of any organic substance. Paper is also organic, right? It's made from plants. Uh, in a presence of oxygen to produce carbon dioxide and water. जब भी कोई चीज कंबस्ट हो रही होती है ना मेरे बच्चों, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. जब भी कोई भी चीज कंबस्ट हो रही होती है, सो व्हाट हैपेंस इज उसके ऊपर इट देयर इज अ फ्लेम ऑन इट. फॉर एग्जांपल, वेन एवर वी गो फॉर बारबेक्यूज, जो कोल्स होते हैं, इनिशियली व्हेन वी लाइट देम अप, उनके ऊपर आग लग जाती है, उनके ऊपर फ्लेम्स आती हैं, दैट्स कंप्लीट कंबशन. लेकिन थोड़ी देर बाद हम लोग क्या देखते हैं? दैट फ्लेम गोज अवे, बट दे आर स्टिल बर्निंग, दे ग्लो रेड. इसी तरीके से इफ यू हैव सीन समवन स्मोकिंग अ सिगरेट, सो व्हाट हैपेंस इज कि जो उसका पेपर होता है ना बेटे, वो क्या हो रहा होता है, वो उस पे देयर इज नो फ्लेम ऑन इट, but still burning. It glows red as it burns, right? That is what we call as incomplete combustion. इनकम्प्लीट कंबशन से हमारे पास कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड. इट्स नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है? ये बात याद रखिएगा. So the first thing that we are supposed to talk about when we talk about the cigarette smoke is carbon monoxide. ठीक है जी? अच्छा, अभी करती क्या? विल टॉक अबाउट दैट. और ये किसकी वजह से हो रही है? इट्स प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द पेपर एंड ऑब्वियसली टोबैको एज वेल. ठीक है? अब दूसरी चीज, this tobacco that we have, or the tobacco in the cigarette, contains two chemicals. टोबैको में दो केमिकल होते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है निकोटीन, राइट? अब whether the person is chewing tobacco or if the person is smoking tobacco, टोबैको के अंदर निकोटीन होता है. ठीक है?
अच्छा, अब व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट निकोटीन? हमें क्या पता होना चाहिए? नंबर वन, निकोटीन इज बेसिकली द एक्टिव कंपाउंड ऑफ द सिगरेट और द एडिक्टिव कंपोनेंट ऑफ द सिगरेट। दूसरी चीज हमें क्या पता होना चाहिए? इट्स नॉट वेरी गुड फॉर द कार्डियोवेस्क्यूलर सिस्टम, ठीक है? ये क्या करता है? इट हार्डन्स द walls of the arteries. It hardens the walls of the blood vessels. अब जब ब्लड वेसल्स के अंदर इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, स्पेशली आर्टरी के अंदर, व्हाट्स गोना हैपन? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। व्हाट व्हाट डू यू मीन टू, बेटे? So it hardens the walls of the blood vessels, doing what? Increasing the blood pressure, ठीक है? हाँ, बट वी आर ओनली सपोज टू नो अबाउट टू, बेटे, ठीक है? जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना बेटे, देयर टू। अच्छा, तीसरी चीज ये क्या करता है? तीसरी चीज ये क्या करता है? एंड इट मेक्स व्हाट स्टिकी? प्लेटलेट स्टिकी, increasing the risk of what? Of the blood clots. अगर ये ब्लड क्लॉट्स ब्रेन में हुए तो स्ट्रोक हो जाएगा। बट इफ दीज ब्लड क्लॉट्स हैपन इन द ब्लड वेसल सप्लाइंग द ब्लड टू द हार्ट, तो हमारे पास क्या हो, कौन सी वाली बीमारियां हो जाएंगी? कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, ऑल ऑफ दीज, ठीक है? राइट, सो अगर हमारे पास ब्लड क्लॉट्स ब्रेन में बनेंगे तो स्ट्रोक होगा, अगर हार्ट कोरोनरी आर्टरी के अंदर होंगे तो हमारे पास कोरोनरी हार्ट डिजीज और कोरोनरी आर्टरी डिजीज का रिस्क बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, द सेकेंड component of the cigarette smoke that is dangerous is basically tar, ठीक है? अब देखो, टार हमारे पास क्या करता है? टार के बारे में दो चीजें पता होनी चाहिए। नंबर वन, इट इज अ कार्सिनोजन। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू tar can cause cancer. दूसरी चीज, कैंसर तो अगेन उस पर चांस होता है कि कैंसर करवाए नहीं करवाए। द सेकेंड थिंग दैट टार डज इज, हसान बेटे, निकोटीन इज बेसिकली कॉजिंग द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट्स ना, तो स्ट्रोक और हार्ट अटैक वगैरह यहाँ होगा। डोंट लिंक दैट अप विद टार, ओके? ऑल राइट। दूसरी चीज, ये जो एक्ट करता है और जो the tar causes is something that we call as COPD. What is COPD? Chronic obstructive pulmonary diseases, right? COPD. Acha, before we talk about COPD, let's discuss their name, right? Why use such a long name for these type of diseases? देखो होता क्या है? Excuse me. The word chronic means long term. देखो होता क्या है कि ना, like for example, कुछ बीमारियां होती हैं जो अक्यूट होती हैं, फौरन से हो जाती हैं। लाइक दिस यूजुअली हैपेंस विद माय बेस्ट फ्रेंड एंड आई, कि अगर उसको if he's going to have flu or something, so the next day I would get it, and vice versa. If I'm going to have some flu or nazla zukam, तो उसको अगले दिन हो जाएगा। The reason is that whenever we go out, we share our drinks, ठीक है? अब ताहा ने he orders a bottle of soda, so if he's going to do that, I'm not. I'm just going to, if I would want to drink it, I would just take a sip right from his bottle. तो इसी तरीके से, एंड अगेन ही डज द वेरी सेम थिंग। तो बिकॉज ऑफ दिस,
अगर उसको एक दिन फ्लू होगा, एंड इफ लेट्स से भाई इफ आई टेक अ सिप ऑफ हिज ड्रिंक डायरेक्टली विदाउट यूजिंग अ सेपरेट स्ट्रॉ, सो अगेन अगर सेलिवरी एक्सचेंज हुआ तो अगले दिन मैं बीमार पड़ जाऊंगा। ये अक्यूट डिजीज है, फौरन हो रही है, राइट? वेल दैट्स व्हाट बेस्ट फ्रेंड्स आर फॉर, आमना। नो। तो लेकिन कुछ बीमारियां होती हैं which do not, they don't appear foreign से, it takes a very long time for them to develop। हो रही हैं हल्के हल्के सिम्टम्स, एग्रीवेट हो रहे हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसके बाद फुल ब्लोन सिम्टम्स आते हैं, राइट? कैंसर बीइंग वन। सो सिमिलरली टार जो डिजीज करवाता है ना, वो लंबी होती है, वो फॉरेन से नहीं होती, देर क्रॉनिक, नंबर वन। नंबर टू, वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करवाती है, वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करवाती है, ठीक है? मेक सेंस? अच्छा, अब अगर हम लोग एयरवे के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगेन अगर हम लोग एयरवे के बारे में बात करें तो उसके अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो क्या हो जाएगा? क्या चीज ऑब्स्ट्रक्ट हो रही होगी? एयर नहीं जा पा रही होगी। इफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द गैसियस एक्सचेंज सिस्टम अकर्स, एयर वोंट बी एबल टू गो। आर वी गेटिंग दिस? ठीक है। पल्मोनरी डिजीजेस क्या होती हैं? दोज डिजीज अफेक्ट इन द गैसियस एक्सचेंज सिस्टम। ऑलराइट। तो ये वो डिजीज हैं जो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करवाएंगी, लेकिन फॉरेन से नहीं, दे टेक अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप, राइट? एंड व्हाट सिस्टम विल दे अफेक्ट? दे अफेक्ट द pulmonary system। All right, now moving on। COPD हमारे पास दो है। The first one is called as chronic bronchitis, it affects the trachea and the bronchi. The second affects the alveolus, and it's called as emphysema. Please do not call it SEMA, it's emphysema. ठीक है? So we'll stop here today. In the next lecture, we're going to talk about chronic bronchitis and its effect on the trachea and the bronchi. Have a good day, guys.